آج کے مہمان خاص میں ہمارے مہمان بنے کتابوں کی دنیا کا ایک مشہور نام خالد پرویز۔ ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے، جہاں وہ پہلے سے ہمارے استقبال میں کھڑے تھے۔ خالد صاحب، بڑا اہم ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تاجروں کے حوالے سے۔ تو کرونا جو ہے وہ تو بڑا نقصان دے رہا ہے عوام کو بھی اور کاروبار کو بھی، تو کیا دوبارہ کاروبار کھلنے سے اس کا نقصان نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تو قدرت کی طرف سے ایک آفت جو آئی ہے، اس نے یہ ہماری معیشت پہلے بیمار تھی، کاروبار نام کی چیز نہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ ختم ہی تقریباً ہو رہی تھی۔ اوپر سے یہ کرونا جب آ گیا تو اس نے تباہ و برباد کر دیا تمام چھوٹے تاجروں کو۔ آج جو صورتحال میرے تاجروں کی ہے وہ بڑی قابل رحم ہے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں۔ ہمارے یہاں سسٹم بھی ایسے ہیں کہ جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ مثلا حکومت نے بجٹ میں بھی ان کے لیے خاص طور پر کچھ نہیں رکھا، چھوٹے تاجروں کے لیے جو مر چکے ہیں۔ اس میں بیشتر جو بڑی دکانیں تھیں جن کی کرائے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے تقریباً 25% کاروبار لوگوں کے ایسے ہیں کہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہیں آج کہ ہم چھوڑیں گے اس کو، کرائے کے لیے وہ خالی کر دیں۔ اب یہ صورتحال ہے اور اس کی حکومت بھی ہماری ایک پیج پر نظر نہیں آتی، نہ حکومت ایک پیج پر ہے۔ اگر پہلے دن اس کو 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن ہوتا پورے ملک میں اور سخت ہوتا، جو لاک ڈاؤن تھا بھی نا شروع میں وہ ایسا نہیں تھا، وہ اس میں بھی لوگ پھر رہے تھے، سب جگہ جا رہے۔ حکومت نے تو دیکھیں لاک ڈاؤن کیا اور تاجروں کا اس قدر پریشر تھا کہ وہ ان کا کاروبار بند ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں، تو وہ کھولا گیا اور کھولنے کے کچھ دن بعد ہی نتائج یہ ہوئے کہ کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ خاص کر لاہور میں نہیں، اس کی 2-4 وجوہات ہیں۔ اگر پہلے دن لاک ڈاؤن ہوتا صحیح قسم کا اور جو وقفہ ان کو دیا گیا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی دودھ والی دکان کھلی رہے گی، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، کریانہ کی دکان کھلی رہے گی، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، سبزی کی دکان کھلی رہے گی، اس کے لیے کوئی نہیں، پھل کی دکان، بڑے بڑے اسٹور کھلے رہیں گے۔ جی یہ کرونا نے وہیں سے جنم لیا، بڑے اسٹوروں سے، بڑی جگہ سے۔ آج بھی دیکھتے ہیں، آج لاک ڈاؤن ہے، 7 بجے کے بعد بند ہے، رات 12 بجے آپ میرے پاس آ جائیں، میں گلبرگ میں بیٹھا ہوں، آپ کو میں دکھاتا ہوں کس طرح گاڑیوں کی لائنیں۔ شعور نہیں ہے لوگوں کو۔ اب اگر شروع سے تمام ٹریڈ کو کھلا رکھتے کہ ایک ٹائم دیا گیا ہے 5 بجے تک فرض کریں، اس میں سب کو کہتے کہ آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے کھولیں، اس سے یہ ہونا تھا کہ جو عید پر آ کر رش پڑا ہے وہ نہیں ہونا تھا۔ ایک تو ایس او پیز کا خیال جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری بھی تھی، اور لوگوں کو تو قصور نہیں ہے، اس میں شعور نہیں ہے لوگوں کا، کہ لوگوں کو شعور ہوتا تو ہم آج اس حال میں نہ ہوتے۔ اور آگے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا کرونا کا، یہ بری طرح، اب میں ایجوکیشن پر بات کروں گا کہ جس ملک کی ایجوکیشن نہیں ہے وہ بربادی کی طرف ہی جاتا ہے، وہاں سے جرائم بھی جنم لیتے ہیں اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ آج ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے، حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان کو ایس او پیز کے مطابق پڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آن لائن شروع کر دیا۔ اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آن لائن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے پاس، میری شہری آبادی کا 60% اور دیہاتی آبادی کا 40% گورنمنٹ سیکٹر میں، اسی ریشو کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یوں کہہ رہے ہیں اب 50-50 یہ آئی۔ تو اگر وہ لوگ ایس او پیز کا خیال نہیں کر سکتے، کالجز میں کوئی ناسمجھ لوگ تو نہیں ہوتے، ان کو کھولنا چاہیے تھا، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس، جو اساتذہ ہے
ان کو اس لحاظ سے آگے گائیڈ لائن کرتے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، آپ تاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ہے دکاندار، لیکن تاجر ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے حالات تو شاید اتنی جلدی خرابی کی طرف یا اتنے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ دکاندار کی بات کر رہے میں ہیں۔ تو جو تاجر کہلاتا ہے، جس کی میجورٹی جو ہے وہ ہے، اور 75% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں 15% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرونا سے فائدہ اٹھایا۔ وہ کس طرح؟ یہ وہ بھی تاجر کہلاتے ہیں۔ وہ کس طرح فائدہ اٹھایا؟ وہ بہت ساری اشیاء پہ منہ مانگے داموں انہوں نے سیل کی۔ اگر کسی کے پاس کوئی 100 پیس پڑا ہے تو اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ آگے سے آنا نہیں ہے، اور اس اپنے من مانے ریٹ لیے، کسی کو خوف خدا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں تاجر کہتا۔ تو دیکھیں نا، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، سب کچھ یہی رہے گا نا، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اگر مسلمان ہے مکمل ارادے کے ساتھ یہ سوچ لے اگر، تو کوئی بھوکا نہیں مر سکتا، کسی کو پریشانی نہیں آ سکتی۔ لوگوں نے اپنے سرونٹ کو چھٹی دے دی، وہ بے روزگار ہو گئے، وہ مارے پھر رہے، وہ ڈر کے مارے اس کو بلا لیے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پینٹ کی صنعت کو کھول دیا۔ کوئی اپنے گھر میں کلی کروانے کے لیے تیار نہیں، رنگ کروانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کرونا ڈر رہا ہے وہ۔ اب اس کے لیے کیا ہے، ریاست نے دیا۔ یہ اصل چیزیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ ان تک یہ لوگ حقدار ہیں۔ اب چھوٹا تاجر ہے جو پہلے ہی ہماری معیشت جو ہے نا پسی ہوئی تھی۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیں کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے اس پہ SOP جو عمل درآمد کروا رہی ہے حکومت، اس سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیں، حکومت کا جو SOPs کے ساتھ لوگوں کو کھولنے کا تھا، بڑی اچھا اقدام ہے، ہونا بھی چاہیے تھا، ہوا بھی کہیں پر۔ یہاں ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں ہم، شعور نہیں ہے لوگوں کو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، یہاں کا شہری جب جہاز پہ بیٹھتا ہے تو 2 گھنٹے کا اس کا سفر ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ یہ وہ شہری ہے جو کسی چیز کی پاسداری نہیں کرتا، اور جب یہ کسی اور ملک میں جا کے اترتا ہے تو وہاں کے SOPs کو فوری اپناتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سسٹم ہے، یہاں سسٹم نہیں، ڈر نہیں ہے۔ قتل کی سزا موت ہے، روزانہ قتل ہوتے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ایک ایسا جامع پروگرام ہونا چاہیے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، یہ ہونا چاہیے تھا، اور اس سے لوگوں کو ڈر خوف ہوتا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن آج صورتحال اس کے برعکس، بالکل لوگ پرواہ نہیں کرتے اس کی۔ آج بچے گھروں میں بیٹھے ہیں 6 ماہ سے، یہی بچے باہر پھر رہے ہیں۔ اگر یہی ان کو اسکولوں میں بٹھا دیا جائے SOPs کے ساتھ، اساتذہ اس کے کریں، آپ 1 شفٹ ہے 2 شفٹیں کر دیں آپ اسکول کی۔ اگر 50 بچے ہیں کلاس میں تو 25 کرتے ہیں آپ، 25 سیکنڈ ٹائم آ جائیں، شیڈول بنا لیں۔ سلسلہ اگر کرونا کے ساتھ ہی چلنا ہے، اگر وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ اس کو ان حصوں میں تقسیم کریں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو یہاں جرائم پر قابو نہیں پا سکتے آپ، یہاں غربت پر قابو نہیں پا سکتے آپ، یہاں چوری چکاری یہ ڈکیتیاں یہ مجبور لوگ ہی کرتے ہیں بعد میں، جن کو مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ اور آج جو آگے صورتحال بڑی خطرناک دیکھ رہا ہوں میں، یہ کرونا سے بڑی صورتحال اگر 6 ماہ اسی طرح رہ گیا تو یہ اس نیا کو پار لگانا کسی کے بس پہ نہیں ہوگا۔ اگر جس کی معیشت نہیں ہے، ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تو پہلے ہی بدقسمتی سے ناکارہ تھی، ہماری پالیسی تھی کوئی نہ، کوئی سسٹم تھا، جس کی وجہ سے آج یہ تجارت کا یہ حال ہے۔ اور
कोई एक ट्रेड मुझे बता दे कि कोई शख्स ये कहता हो कि मैं ठीक हूँ। अगर जिन लोगों ने इस दौर में मफादात लिए उन्हीं को सारे सिलसिले में और लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लिए उन्होंने किसी की जान की परवाह नहीं की। वो कहने को तो जी वो खुले हैं शाम तक, लेकिन SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। जितने बड़े स्टोर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ से उनके लोगों का रश, जो ये तो शऊर की भी बात है। लोगों ने पहले तो इसको इजी लिया, ये सोचा ही नहीं। अब हम सोच रहे हैं ये बात कि इसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता। उसके घर में रोटी होगी, उसके पेट में रोटी होगी, उसके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। इस पर काबू पाया जा सकता है। जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल, ये मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात। मेन फैक्टर यही है कि उसके घर खाने के लिए देंगे, वो मजबूर है अपने बच्चों की मौत देंगे, वो बाहर निकला कमाने के लिए, और वो सारा शहर ही निकल पड़ा, क्योंकि सारा शहर ही बेरोजगार। उनकी अहलिया ने असल लाहौरी कीमे वाले पराठों से नाश्ता करवाया और घर में लगी तमाम बच्चों की तस्वीर से हमें आशना करवाया। खालिद साहब, ये सुबह आप लाहौरी नाश्ता ही करते हैं, पराठे और कीमे वाले, खासकर पराठे? बस कभी कभार होता है ऐसा कि करते हैं। वैसे मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि सारा दिन पता नहीं खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसलिए सुबह एक टाइम खाकर तो निकल पड़ते हैं। इसके साथ कभी आलू के पराठे, ये हमारे लाहौर की सौगात कह लें आप, कीमे के पराठे, इस तरह के तो नाश्ता बना दिया कभी। ये आप बताएं, इतने पराठा ये खाते हैं और आपको रोज़ ये एक्सरसाइज करनी पड़ती होगी? जी जी बिल्कुल करनी पड़ती है। तो क्या ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं, और अच्छा इनके लिए आप क्या खुद कुकिंग करती हैं? जी जी ज़्यादा शौक से कीमे वाले पराठे खाते हैं। अच्छा। आलू के भी ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन कीमे के ज़्यादा मज़ेदार भी यही बनते हैं ज़्यादा। मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, खुद बनाने की क्या वजह है, आप खुद क्यों बनाती हैं घर में? ताकि साफ़ सुथरा इनको सब, बच्चों को भी, इनको भी, खाले सबको साफ़ सुथरा खाना मिले। मुलाजम इस तरह नहीं बनाते ना, सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो खुद बनाने के मकसद यही है कि इनको साफ़ सुथरा खाना मिले घर का। अच्छा, खालिद साहब जो हैं घर में कैसे हैं? वहाँ बाहर तो ज़ाहिर है कारोबारी शख्सियत है, तो कारोबार को ज़्यादा देखते हो। घर में भी कोई आपको इससे प्रॉब्लम होती है कि कारोबार का यहाँ पे भी कोई ध्यान इनका रहता घर में? नहीं, घर में आके घर पर ही ध्यान होता है, बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ। घर में आके कारोबार की बातें नहीं करते, घर में सिर्फ घर की बातें ही होती हैं। तो आपकी इस अज़वाजी ज़िंदगी को कितने बरस बीत गए हैं और कितने माशाल्लाह बच्चे हैं, पोते पोतियाँ कितने हैं? अब माशाल्लाह मेरी शादी को 35 ईयर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है माशाल्लाह 34 ईयर का है, उसकी एक बेटी है, वो भी माशाल्लाह 8 साल की है, और एक उससे छोटा बेटा जो है उससे उसके 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, और उसकी शादी को हो गए हैं 4 साल। फिर एक बेटी की शादी कर दी हमने माशाल्लाह, उसका बेटा है 2 साल का। फिर 2 बच्चे भी रह गए हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, एक बेटी है, एक बेटा सबसे छोटा। खालिद साहब, आपका बेसिकली बिजनेस क्या है और कब से आप ये जो है इस लाइन में कारोबार में आए? मैं बड़ी छोटी उम्र थी, मेरी 12-13 साल की उम्र थी,
मैं मुसलमान स्कूल में ही पढ़ा करता था। तो फिर वहाँ से मैंने अपने काम का आगाज़ किया। तो पढ़ाई के दौरान छुट्टी होती थी तो मैं बाहर छोटी सी दुकान पर किताबें सेल किया करता था, पुरानी नई सब, एक मजदूर टाइप का काम आप समझ लें। तो जब स्कूल लगने से पहले मैं सुबह 6 बजे पहुंच जाता था। अगर 8 बजे स्कूल लगना तो मैंने 6 बजे पहुंच जाना। बच्चे वहाँ आते थे और किसी को पेंसिल, किसी को किताब, किसी को कॉपी की ज़रूरत थी। और फिर इसकी लगन बढ़ती गई। जिस तरह पढ़ता रहा और आगे अपने काम को भी बढ़ाता रहा, लेकिन एक मिशन था ज़हन में लेकर चला। जो बच्चा था उस वक्त, ज़हन में एक सोच थी कि हमारा मुल्क शरह ख़ानदगी में दुनिया से पीछे है। अगर हर आदमी ये सोच ले कि आगे बढ़ना है तो फिर अपनी मेहनत के साथ इस काम को, अल्लाह ताला की देन तो एक है, उसके बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं। लेकिन अपनी मेहनत को जारी रखा स्कूल टाइम के बाद भी, रात 12 बजे तक और सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं अपनी ड्यूटी सारा अंजाम देता था वहाँ। और कापी, किताब, पेंसिल, हर चीज़ वहाँ सेल करता था। वहाँ क्योंकि मुस्लिम मॉडल स्कूल, सलीम मॉडल, कमाल जूनियर, सेंट मॉडल स्कूल, बहुत सारे स्कूल वहाँ थे और कस्टमर इतना ज़्यादा था। और उस दौर में दुकानें चंद थी। तो फिर बच्चों के साथ एक, क्योंकि छोटी उम्र थी, बच्चों के साथ एक बड़ी लगन थी। किसी के पास पैसे होने हैं उसको भी दे देना, नहीं है पैसे तो उसको भी दे देना, ये सिलसिला अपना रखा। और मेरे जो असातिज़ा इकराम थे उनका भरपूर तावन मेरे साथ होता था। वो बच्चों को ये भी कहा करते थे कि जो आपको सस्ता देता है, जो अच्छी चीज़ देता है, आप उसके पास ही जाओ। ये खालिद आपका स्टूडेंट साथी है, तो इससे खरीदारी करनी है। तो इस तरीके से वो सिलसिला उस वक्त से चला और आज भी हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह अपनी इस जद्दोजहद में है कि हर उस आदमी तक किताब को पहुंचाया जाए जो हासिल नहीं कर सकता, जो खरीद नहीं सकता किताब को। तो इस कारोबार का जिस तरह आपने बताया, जिक्र आपने किया, छोटे से कारोबार से फिर बड़े बिजनेसमैन कैसे बढ़े? ये तो अल्लाह ताला की देन और एक जद्दोजहद और एक नीयत, ईमान पुख्ता था और ये यकीन था कि कभी सोच लिया ना कि अगर राह चलते हुए ये गट्ठी मिलेगी तो मिली है। इस ईमान के साथ, मजबूती के साथ, और फिर कस्टमर मेरे पास बहुत था और बड़े कम प्रॉफिट पर काम किया और इस तरह सिलसिला चलता रहा। आहिस्ता 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 कल तक वहाँ मजदूरी थी मेरी। और फिर उसके बाद जब काम चला, एक किताब प्रिंट की, फिर 2 की, फिर 3 की, इस तरह साल साल वो एक सिलसिला चलता रहा। तो फिर अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन मैं ये बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि मैं आज भी वही हूँ जहाँ से चला था। आने वाली मेरी पुश्तें भी इस काम को हैंडल कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि इसमें मैंने बड़ी एक जद्दोजहद की, पूरे मुल्क में नाम कमाया। शोबा तालीम में एक अच्छे नाम से मुझे याद किया जाता है। और कभी पैसे के मुतालिक नहीं है, ये सोचा नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसको भी किताब दी है, जिसके पास नहीं है उसको भी किताब दी है। और कोशिश यही की है कि हर घर तक पहुँचे किताब। यही वजह है कि मैंने अपनी तमाम शाया करदा कुतब जो हैं उनके ऊपर वाज़े लिखा है कि कोई किताब किसी को ज़रूरत हो, अगर वो नहीं खरीद सकता, सकत नहीं रखता, तो मुझसे रब्ता करे। फिर मैंने डाक खर्च खुद बर्दाश्त करते हुए उसे घर तक किताब पहुँचाई, चाहे वो बलोचिस्तान में बैठा है, चाहे वो खैबर पख्तून में बैठा है, चाहे वो सिंध में बैठा है, चाहे वो पंजाब के किसी गांव में बैठा है, वहाँ तक किताब पहुँचाइए। ये मिशन लेकर चला और ये मेरे असातिज़ा की और इन बच्चों की जो दुआएं हैं उनकी वजह से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया। और आज भी
वो लोग याद करते हैं, बड़े बड़े नामवर लोग बने हैं मेरी किताबें पढ़ के, और बाकी की किताबें किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हर शख्स आपको जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा मैंने पढ़ी है। आज कल जिन्होंने ये किताबें पढ़ी हैं, आज एजुकेशन के मैदान में वो पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने पढ़ी हुई हैं वो किताबें जो आपने बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं। ये इजाज़त मुझे हासिल है, और कोई बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, और एक रिस्पेक्ट जो होती है, मैं कभी भी किसी महकमे में जाता हूँ तो मुझे ऐसा प्रोटोकॉल मिलता है कि शायद किसी वजीर को ना मिलता हो। बड़ी एक मोहब्बत करते हैं यहाँ के लोग, बड़ा प्यार करते हैं, और भरपूर ताउन रहा है हमेशा तालिब इल्मों का मेरे साथ। तो इसीलिए मैं इस पर सोचता नहीं हूँ, ये अमानत है मेरे पास, इन बच्चों की है, और मैं उन पे खर्च करते हुए मुझे फख्र होता है। एक भी कामयाब होकर निकलता तो मेरे लिए ये बड़ा कारनामा है। हुकूमतों ने तो आज 2 साल 4 साल से बच्चों को किताबें देनी शुरू की। जब से वो गैर मुल्की उनको इमदाद आई है तो बच्चों को फ्री किताबें देनी शुरू की। लेकिन मेरा ये शुरू पहले दिन से, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मैं यूँ कह ले कि मैंने अल्लाह ताला से कारोबार किया। वो कहता मैं 70 गुना दूंगा, तो मैंने उस सिलसिले को सामने रखते हुए कारोबार किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, किसी ने आके कापी मांग ली कि मैं खरीद नहीं सकता, मैं गरीब हूँ, मैं यतीम हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ये हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बच्चे हैं, लोग हैं, वारिस हैं इस मुल्क के, मैं अपनी इसमें हिस्सा जरूर डालूंगा। और मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया, चाहे वो जेन्युइन था या नहीं था, लेकिन जिसने सवाल किया उसको किताब जरूर दे के भेजा। और आज भी अल्लाह का करम ये है कि जितनी किताबें लोग सेल करते हैं, मैं रोजाना उतनी किताबें फ्री तकसीम करके जाता हूँ। खालिद साहब, कारोबार किताबों का है, तो किताबें पढ़ने का शौक कितना है? देखिए, आज वो हम तो एक एहसास महरूमी का शिकार, हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हम सलाहियत इतनी थी, लेकिन माली तौर पर हम एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते थे। इस तरह हमें साथ साथ अपने घर को भी लेकर चलना था, छोटे बहन भाइयों को, बहनों को, भाई को, अपने पूरे घर का निज़ाम। मेरी मेहनत मजदूरी पर था, सारे बच्चे, सारे भाई एजुकेशन हासिल कर रहे थे। बड़े भाई मेरे मैकेनिकल इंजीनियर थे, बाद में बने, उनको भी उस मुकाम तक पहुंचाया, सब भाइयों को तालीम भी दिलवाई, और वो बड़े अल्लाह ताला की रहमत के साथ बड़े एक अच्छे आप कह लें कि दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये नहीं कि पैसे आ गए और जनाब हमने सोच लिया। लेकिन आज हम बड़ी आज़ी के साथ यही कहते हैं कि आज भी हम उसी मुकाम पर हैं, हमें आगे चलना है। ये कौम के बच्चे हमारे बच्चे हैं। ये हमारी कोशिश ये है कि तालीम से महरूम कोई ना रहे। जो हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसको हम अदा कर रहे हैं। एक अपने वतन में रहते हुए, इस वतन की बदौलत सारा कुछ मिला, लेकिन हम उसमें अपनी जद्दोजहद को आज भी इस उम्र में भी जारी रखा हुआ है, और जब तक दम में दम है इसको जारी रखेंगे ताकि ये सिलसिले आगे बढ़ते चले। अच्छा खालिद साहब, जो हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम है, क्योंकि आपका बराह रास्त इसके साथ वास्ता रहा है, क्योंकि आपका शोबा इस तरह से है, बिजनेस इस तरह का है, तो किस दौर में आपको लगता है कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जाती रही या कुछ बेहतर हुआ? किस दौर में हुआ? देखिए, ये तो एक जब से पाकिस्तान बना, किसी दौर में इस पर तवज्जो नहीं की। एक दौर देखा जब हम छोटे थे, वो दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर। उसमें एजुकेशन की कदर हुई, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये कोशिश थी कि हर गरीब आदमी तालीम हासिल करे। वो कहा करते थे कि गरीब का बच्चा भी जाना। वो उनकी पॉलिसी थी एजुकेशन कि उनका पहली तरजीहात में शामिल थी ये चीज़ कि हर घर में तालीम पहुंचाई जाए,
ताकि इन लोगों को शऊर आए। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि उनके जाने के बाद तो फिर उनकी शहादत के बाद तो कोई ऐसा नहीं आया कि जिसमें हम कह सकें कि एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए कुछ किया गया। उनमें खूबियाँ ये थी कि एक उस्ताद को उसका मुकाम दिया गया था। जो प्राइवेट सेक्टर में थे मुकाम टीचर, उनको नेशनलाइज किया गया। उसके पीछे कुछ नहीं था, उसके पीछे यही था कि इसका एक स्टेटस हो, इसका एक मुकाम हो टीचर का। तो उसको उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया और उसको सरकारी मुलाजम के तौर पर हज़ारों लोगों को शामिल कर लिया, पूरे मुल्क के लोगों को। वो अलग बात है कि हमारे लोग इस काबिल थे या नहीं थे, लेकिन उनकी सोच जो थी बड़ी अच्छी थी। फिर उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट है, उसको 4 आने खर्चा मिलता है, 10 पैसे में वो पूरा शहर फिरता था। ये उसका मुकाम को तस्लीम करना था। उसकी एजुकेशन फ्री की गई, फीसें माफ उसी दौर में हुई। पहले सरकारी स्कूलों में भी फीस अदा होती थी, लेकिन उन्होंने आके फीसें माफ कर दी और लोग ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। कोई ये ना कहे कि मेरे बच्चा पढ़ नहीं सकता, मेरे पास अखराजात नहीं, उस पर उसकी फीस कोई नहीं थी, आना जाना फ्री था। तमाम स्टूडेंट का भी एक मुकाम था और जो कंसेप्ट था वो ये था कि मेरा उस्ताद किसी बस पर चढ़े तो पूरी बस खड़ी हो, मेरा उस्ताद किसी महकमे में जाए तो उसको एहतराम के साथ सीट दी जाए। ये उस्ताद का मुकाम बनाया गया था। उस पर अमल नहीं किया हमारी कौम ने, या यूं कह रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं थे कि हमने उसको फॉलो नहीं किया और आज उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। उसके बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई। सबका दौर में जब एजुकेशन की बात हुई तो मेरी मीटिंगें वज़ीर आज़म से भी होती थी, वज़ीर आला से भी होती थी। एजुकेशन के मामले में मैंने बात कर ली कि गरीब लोग हैं, इनकी दुआएं लें, इनको एजुकेशन में कुछ दें, कागज़ में ड्यूटी फ्री करें, इस तरह की बातें होती थी। तो मुझे वज़ीर आला साहब ने कहा कि यार हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये पॉलिसी हमारी नहीं है, ये पॉलिसी उसकी है जिसने हमें पैसा दे, जो पैसा देगा पॉलिसी उसी की चलेगी। ये एक बड़ा लंबा फिक्रिया था उस वक्त का, कि आज भी वही है कि अगर IMF दे रहा है, अगर कोई NGO दे रही है तो उसके मकासद हैं पीछे। वो हमारी कौम के बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं वो हमारी नहीं है। उसमें देख लें आपने, तमाम जंगे, हमारे इस्लामी वाक़यात, सब कुछ निकाल दिया गया। यहाँ तक मैं कहूँगा कि 6ठी से लेके मैट्रिक तक के किसी किताब में कायद आज़म का, इनामा इकबाल का मज़मून नहीं है। जंगे और जंगे बदर, दूसरी जंगें जो हैं इस्लामी जंगे, वो हमारे सिलेबस में निकाल दी गई हैं, क्योंकि जो पैसा देते हैं पॉलिसी वही देते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे मुल्क के बच्चों को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बच्चों को, जिसे हम बुनियाद कहते हैं, जिसे हम करीम कहते हैं, इनको जो तालीम दे रही है वो गैर मुल्की किताबों में से दी जा रही है। उसमें मेरे वतन का झंडा नहीं, उसमें मेरे मजहब का नाम नहीं, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो वो तालीम हासिल करके कहाँ जाएगा? वो इस मुल्क में रहेगा। वो इस मुल्क के लिए तो उसको पढ़ाया ही कुछ नहीं जा रहा। वो जो तारीख पढ़ रहा है वो हमारी नहीं है, वो अंग्रेजों की तारीख पढ़ रहा है। अंग्रेजी जबान कोई बुरी जबान नहीं, उसका कल्चर एक अपना है, सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री तो अपनी पढ़नी चाहिए। ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उससे किसी को पता ही नहीं कायद आज़म के, इलामा इकबाल के क्या कारनामे हैं, हमारे जो हीरोज थे, यहाँ तक के जिन्होंने अब इस वतन के लिए शहादत नोश की, हमारे शोहदा। पैसे की इतनी ताकत है
کہ جو غیر ملکی دیتے ہیں انہوں نے سب شہداء کے کارنامے نکالے. یہ ایک بڑا سانحہ ہے پوری قوم کے لیے آج. لیکن جو بھی دور آیا اس نے ایک ہی نعرہ لگایا, یکساں تعلیمی نظام, یکساں تعلیمی نظام, یکساں تعلیمی نظام. وہ ممکن نہیں ہے اس ملک میں. یہ بڑا ایک عجیب سلسلہ جو چلا ہوا ہے کہ آج لوگ تعلیم سے محروم ہیں, مل نہیں رہا انہیں کچھ, بچے کی پہنچ سے باہر ہے. دنیا میں کہیں ایجوکیشن پر ٹیکس نہیں. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں 55% کے قریب ٹیکسز ہیں. پیپر لینا ہے اس پر ٹیکس ہے, اسٹیشنری لینی ہے اس پر ٹیکس ہے, کوئی تعلیمی ضروریات کی چیز لینی ہے اس پر ٹیکس ہے. وہ ٹیکس کس نے ادا کرنا ہے؟ وہ جو غریب آدمی زمین پر بیٹھا ہوا اس نے ادا کرنا ہے, کسی بڑے نے نہیں کرنا, کسی پبلشر نے نہیں کرنا. وہ دے تو دیتا ہے لیکن وہ اس پر ڈالتا ہے, وہ اپنا منافع شامل کر کے ڈالتا ہے اور وہ کاسٹ بڑھتی ہے اس کی پھر. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ تعلیم سے محروم. تو ہم نے ہمیشہ ہی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مینج کر رہے ہیں ہم. جس کو ضرورت ہے اس کو کتاب دیتے ہیں اور ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. 3-4 سال سے حکومت نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا. پچھلے سال کا دور میں کتابیں فری دینے کا جو سلسلہ ہوا تھا اس کے ذریعے اب لوگوں کو 50% لوگوں کو کتابیں مل گئی, 50% جو ہے مارکیٹ سے کتابیں خرید رہے. پھر تعلیمی دنیا کا تاریخی بازار اردو بازار اپنے دفتر کے لیے روانہ ہوئے. وہاں موجود تمام مشہور زمانہ شخصیت کی تصاویر کا خزانہ دکھایا, جس میں مشہور شعراء, سیاستدان اور مصنف کی تصاویر موجود ہیں. خالد صاحب, یہ جو تصاویر کا ذخیرہ آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے. بیسیکلی ہماری جو تاریخ ہے نا, جی شہر لاہور کی تو خاص طور پر ایک بڑا نام, بڑا ایک, لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں تک نہیں پہنچ پائی. یہ آگہی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو صاحب علم لوگ تھے جن کی بڑی کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے, ان کو آویزہ کر رکھا ہے. اور اس میں یہ ساتھ دیکھیں, یہ بڑے نامور لوگ ہیں جن کا ایک مقام ہے, جن کا ایک سرمایہ ہے یہ اس ملک کا آج بھی. لیکن ان کے جو کارنامے ہیں ان سے ہم نے فائدہ نہیں لیا. یہ اجاگر کرنے کے لیے ان کو لگایا گیا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں گے یہاں پر قائد اعظم علامہ اقبال, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی بڑی خدمات تھیں ایجوکیشن کے لیے, اس لیے ان کو بھی لگایا گیا ہے. اور اس طرح یہ ہمارے جنہوں نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کہ یہ اس مادر وطن کے لیے اپنی جان قربانی دینے والے شہداء افواج پاکستان کے یہ شعر ہمارے, یہ بھی ایک اسی لیے کہ اس قوم کو پتہ چلنا چاہیے. حالانکہ یہ اب سب سلیبس سے نکال دیے گئے ہیں, ان کے کارنامے جو ہے ساری زندگی فراموش نہیں کیے جا سکتے. یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تھا ان قوم کے بچوں کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہے یہ. لیکن ہم نے کیونکہ ایجوکیشن سے تعلق ہے اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں صرف اس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس قوم کے بچے تعلیم حاصل کریں, کوئی پیسوں کے لیے تعلیم سے محروم نہ رہے. ہماری کوشش یہی ہے. اور ایک دعوے کے ساتھ یہ بھی بات ہے
कि जो खरीद नहीं सकता उसको हम उसके घर तक किताब देते हैं, पहुंचाते हैं। ये आपके प्रोग्राम की वसात से भी मैं कह रहा हूँ, जो ये लोग प्रोग्राम देखें, अगर उनको मेरी किसी किताब की ज़रूरत है, वो एक सिर्फ ख़त लिखे, डाक का खर्चा भी मैं खुद बर्दाश्त करते हुए उसके घर तक पहुँचाऊँगा। ये भी एक है। और इसी तरह ये सारी चीज़ें वायदा की हैं सारी, ताकि लोगों में ये हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। वैसे तो शहीद जिंदा ही होते हैं। अच्छा खालिद साहब, आपकी दुकान पे देखी कुछ तस्वीर भी बड़ी अहम शख्सियात की आपके साथ भी है, तो यहाँ पे कोई सियासी और बड़ी शख्सियात भी आपके पास किताबों की ख़रीद के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए आती हैं? देखिए अभी हाल ही में जितने बड़े बड़े कंपेयर, तारक अजीज साहब, दीवाने गालिब वगैरह ऐसी किताबें सब मुझसे लेकर जाया करते थे। मैंने कभी, क्योंकि वो भी मेरे मुल्क का सरमाया था, मैंने कभी उनसे पेमेंट नहीं ली। ये इस किस्म का मैं कारोबार नहीं करता। ये वैसे मैं करता हूँ कि कोई दोस्त मेहरबान साहिब इल्म, उससे पैसे नहीं हम लेते, उसको वैसे अपने तौर पर गिफ्ट के तौर पर हम बना के देते हैं। उसके अलावा वैसे तो जो एजुकेशन से ताल्लुक़ हो, जो मसलन मेरी वज़ीर तालीम, जिस दौर का भी कोई भी आया है तो वो यहाँ ज़रूर आया है। इसी तरह मुल्क के नामवर सहाफ़ी, नामवर अदाकार वो शौक़ के साथ इस इदारे में आए। जब उन्होंने सुना कि हम खिदमत कर रहे हैं तो उन्होंने इसको अपनी इज्जत समझा। और यहाँ देखें जमात इस्लामी के रहनुमा, बड़े बड़े शायर, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ जो सहाफ़ी, ये एजुकेशन में भी बड़ा मैदान है, मीडिया के भी मैदान में बहुत उनका नाम है, मियां आमद साहब। ये 10 साल तक यहाँ एक अच्छे माहौल में हमारी गुफ्तगू रही है। और बड़ी उनकी एजुकेशन के मैदान में, जिस ज़माने में मैं नाज़िम थे, उनकी बड़ी खिदमत थी। हर स्कूल में जाया करते थे और वहाँ कहा करते थे जो किताब नहीं खरीद सकता वो खालिद से किताब ले। ये एक उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनके लिए भी ये। और यहाँ तमाम वज़ीर आला, इस तरह साबका गवर्नर भी, मौजूदा गवर्नर भी यहाँ पर आते रहे हैं सभी लोग। और यहाँ देखकर मेरे सिस्टम को, निज़ाम को, यहाँ एक मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एक ख़ास वजह जो हम जैसे कम तालीम याफ्ता मुल्क में है, एक नई चीज़ जो दुनिया में नहीं है, कि आप घर बैठे अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। आप सवाल करें, हमारे पास माहिर मज़मून बैठे होते हैं, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे, चाहे वो फिज़िक्स के मुतालिक हो, चाहे वो केमिस्ट्री के मुतालिक हो, चाहे वो बायो के मुतालिक हो, चाहे वो इस्लामियात के मुतालिक हो, चाहे वो उर्दू के मुतालिक, किसी भी सब्जेक्ट का उसका कोई सवाल हो स्टूडेंट का, उसको जवाब मिलता है फ्री में। ये निज़ाम पूरी दुनिया में नहीं, ये एजाज़ हमें हासिल है कि ये चीज़ हमने बनाई हुई है। यहाँ जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हमारे, वो बैठते हैं आकर सुबह से लेकर शाम तक लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। और ये किताबों की प्रूफ रीडिंग कह लें आप, ये करते रहते हैं साथ साथ बैठकर। उर्दू बाज़ार में मौजूद अपनी तारीखी मंजिल के ऊपर बनाया गया मुकाम दिखाया, जहां बैठकर वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। खालिद साहब, ये चौथी मंजिल पे इतना खूबसूरत तारीखी सा दरवाज़ा लगता है। बेसिकली ये जो इमारत है तारीखी इमारत है, और इसका चारों तरफ इसके देखेंगे आपको, इसे उर्दू बाज़ार को इल्म दानिश का गहवारा कहा जाता है। और पूरे लाहौर की करीम जो है अच्छी दर्सगाहें, गवर्नमेंट कॉलेज, मुस्लिम मॉडल, सेंटर मॉडल, ऐसे तालीमी इदारे हैं, इसलिए इसको खूबसूरत मंजर के तौर पर बनाया गया है। कौन कौन सी इमारतें जो हैं यहाँ से दिखाई देती हैं? देखिए ये सामने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, वो सिविल लाइन कॉलेज लाहौर है, ये सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर है, ये मुस्लिम मॉडल स्कूल है, वो सलीम मॉडल स्कूल है,
इसी तरह चारों तरफ ये गुलाब सिंह का प्रेस है, हाँ हाँ। जिसे गवर्नमेंट प्रेस कहा जाता है आज। तो ये शहर लाहौर है सारा, और एक मंजर पेश करता है, इसलिए इसको इस तरह का बनाया गया है। इसमें ताजर आते हैं, बैठते हैं, मीटिंग होती है उनके साथ, और वो थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। इसलिए यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है जिससे पता चले कि वाकई ये शहर तो लाहौर यहाँ पे है। ऊपर क्या कोई तकरीबात होती हैं, जैसे बड़ा पुराने वक्त में देखें तस्वीर भी जो हैं वो तारीखी जी जी, लगाई यहाँ गई। बाकायदा ताजों की जो अहम मीटिंगें होती हैं यहाँ पर ही होती हैं। ये साजो सामान सारा पड़ा है। ये एक बड़ा एक 5 स्टार होटल से बढ़कर मंजर पेश करता है। वो उस वक्त लाइटिंग होती है, सारा कुछ होता है, और ये इसका अपना एक नज़ारा है। बल्कि जो लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं शाम के वक्त, वो कहते हैं हमारा जाने को दिल नहीं कर रहा। ऐसा एक मंजर पेश करता है। फिर अपने प्रिंटिंग प्रेस में होने वाले कामों का जायजा लेने के लिए गए, जहां उन्होंने किताबें कैसे बनती हैं और छपती हैं इस तरीक़ेकार से हमें आशना करवाया।